Hello, students. Assalamu alaikum. Today, our class is about the age of the probot. आज की हमारी क्लास एज ऑफ प्रोबोट के हवाले से है। उसके हम सबसे पहले समरी पर डिस्कस करेंगे और समरी भी इंग्लिश एंड देन उर्दू। और फिर उसके बाद हो सका तो हमारे पास जो ये चैप्टर है अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर, उस बुक के फर्स्ट पेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले समराइज कर देते हैं इन इंग्लिश। सो कंप्यूटर्स हैव बिकम एन commonplace thing today, and so will becomes robots. In only a few years' time, they will be change the lifestyle of man living in the modern world of the 21st century. What is robot? It's a simply a modified version of a computer. A robot has got a body in which a present in which is present a computer. A personal computer can be changed to a robot doing all the chores of the household: sweeping, dusting, washing, clothing, and utensils. Besides these, they can also do more difficult jobs such as teaching children, making meals in the kitchen, guarding the house, and playing with you and your leisure time. Most robots are working in factories. Their effects can not be felt in the society. The reason of this is that there are very few robots employed in the factories. However, the robots' influence on the society can be felt at once. The robot works at homes, making our lives comfortable, easier, safer, and more pleasant. They are going to make us more legratic, legragetic, and easygoing. Industrial robots can increase the gross national product of the country. They can have a negative on the effect on the economy by increasing the unemployment. One robot will be able to do work at least 10 men. The more advanced the more the robot is, the more work will be able to do. Thanks God, there are not many industrial robots are at present. However, the robot made for personal computer equipped with a body and wheels to move about with will prove to be very useful. People will benefit a lot from these robots. The life will certainly change in the future because of these robots and robots. Now people can have a profound slumber as robots are there to guard their houses. The robots sellers demonstrate their potentials at their showrooms. People using robots do not need strenuous lifestyle. They becomes rather easygoing and having a lot of spare time at their disposal. So this was the summary of the age of the robot. Now in Urdu. अब हम बात करेंगे उर्दू में, और उर्दू में इसी समरी का खुलासा, यानी समरी को उर्दू में डिस्कस किया जा रहा है कि तमाम तर वो स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश में समझने में दुश्वारी होती है तो वो उर्दू में इसको समझ सकें। तो स्टार्ट लेते हैं। आजकल कंप्यूटर आम चीज़ बन चुका है और कुछ सालों में रोबोट भी आम सी चीज़ बन जाएंगे। रोबोट क्या है? कंप्यूटर का तरमीमशुदा हिस्सा है। रोबोट की बॉडी होती है जिसके अंदर कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को रोबोट में तब्दील किया जा सकता है जो कि घर के सारे कामकाज मसलन झाड़ू लगाना, मिट्टी साफ़ करना, कपड़े और बर्तन धोना, इनके अलावा और ज़्यादा मुश्किल काम भी कर सकता है। मसलन बच्चों को पढ़ाना, किचन में खाना पकाना, घर की हिफाजत करना और आपके फ़ारिग वक्त में आपके साथ खेलना वगैरह। अगरचे रोबोट्स फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं मगर इनका असर भी माशरे में महसूस नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि अभी फैक्ट्रियों में बहुत थोड़े ही से रोबोट काम कर रहे हैं। ताहम रोबोट्स का माशरे में असर फौरी तौर पर महसूस किया जा सकता है। रोबोट्स घर पर काम करते हैं और हमारी ज़िंदगी को आराम और आसान, महफूज और खुशगवार बनाते हैं। ये हमें आराम तलब और सुस्त बनाकर
रख देंगे। सनती रोबोट्स मुल्क की मजमूई कौमी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। एक रोबोट कम से कम 10 आदमियों का काम कर सकता है। मईशत पर इनका मनफी असर ये हो सकता है कि बेरोज़गारी बढ़ सकती है। खुदा का शुक्र है कि फ़िलहाल बहुत सारे सनती रोबोट्स नहीं हैं। ताहम रोबोट्स जो कि कंप्यूटर की मदद से बनाए जाने वाले रोबोट्स हैं जिनकी बॉडी और व्हील होते हैं। लोग लोगों को इन रोबोट से बहुत फ़ायदा होगा। मुस्तकबिल में इन रोबोट और प्रोबोट की वजह से ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रह जाएगी। अब लोग घरों पर आराम से सो सकेंगे क्योंकि रोबोट्स इनके घरों की हिफाजत के लिए मौजूद होंगे। रोबोट बेचने वाले शोरूम में इनके जौहर का मुजाहरा कराते हैं। जो लोग रोबोट इस्तेमाल करते हैं उनको एक सख्त कठिन ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, बल्कि वो लोग बहुत यानी आसान सहल पसंद ज़िंदगी पसंद हो जाते हैं और उनके पास बहुत सा वक्त फ़ारिग हो जाता है, यानी फ़रोगत उनसे मिल जाती है। तो ये था खुलासा द एज ऑफ द रोबोट का। अब हम आते हैं कुछ बुक के पहले पेज की ट्रांसलेशन की तरफ। तो फर्स्ट पेज की ट्रांसलेशन हम आज की इस वीडियो में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो आते हैं फर्स्ट पेज की तरफ। जी, द एज ऑफ द प्रोबोट फ्रॉम प्रोबोट एंड पीपल, द एज ऑफ द पर्सनल रोबोट बाय थेमियोटी ओकनैट। इसके राइटर हैं। इमेजिन अ मॉर्निंग, आप इमेजिन करिए, आप तसव्वुर कीजिए वो सुबह, नॉट मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, जिसका ताल्लुक आज से कुछ ज़्यादा साल आगे नहीं है, ऑन विच अ मैन अवेकन आफ्टर अ लॉन्ग एंड सेफ स्लम्बर, जिसमें एक शख्स बेदार होगा एक लंबी और गहरी नींद से। द नाइट बिफोर द ट्री ड्रिफ्ट टू स्लीप, वो रात जब वो पिछली रात सोने गया होगा, टू स्लीप के लिए गया होगा, विथ एब्सोल्युटली नो फियर, तो उसे किसी किस्म का कोई खौफ और ख़तरा नहीं होगा। डेट हिज हाउस वुड बी रॉब्ड, के उसके घर में किसी किस्म की डकैती हो जाए उसका कोई उसे खौफ नहीं होगा। और डेट ही वुड बी इन एनी डेंजर, और ये कि वो किसी किस्म के ख़तरे से ख़तरा उसे दरपेश आए तो उसे ख़तरे का भी कोई खौफ नहीं और डकैती का भी किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। हिस हाउस होल्ड कंप्यूटर इन्फॉर्म है, उसके घर का काम करने वाले कंप्यूटर उसे इन्फॉर्म करेगा डेट हिज ब्रेकफास्ट इज रेडी, कि उसका नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट तैयार है। सो ही प्रोसीड टू द किचन, तो इसलिए वो किचन की तरफ मूव करेगा टू एंजॉय द मील, कि वो मील को इससे लुत्फानंदोज हो। एंड हिज किचन रिपोर्ट हैज़ प्रिपेयर्ड, जो कि उसके किचन के रिपोर्ट ने प्रिपेयर कर रखा होगा। इज ही ईट, जैसे ही वो उसे खाएगा, ही ग्लैंस, उसकी नज़र पड़ेगी एट अ हेडलाइन ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़ ऑन द नियर बाय वीडियो मॉनिटर, करीबी मौजूद वीडियो मॉनिटर पर उसकी एक नज़र पड़ेगी जिसमें हेडलाइंस आ रही होंगी। और हेडलाइंस में क्या बात होगी कि नोटिंग दैट द अनएम्प्लॉयमेंट